Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 12th November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the informal sector of the Indian economy. So you should know that informal sector, it represents to the part of the economy which is neither taxed nor monitored by any form of government. This is basically the unregulated part of the Indian economy. ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा एग्रीकल्चर के केस में the practices which are done by the landless laborers, by the small farmers. इंडस्ट्री के केस में आप देखोगे जो वर्कर्स रहते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, जो सर्विसेज के केस में आप देखोगे द वर्कर्स इन द लोकल ट्रांसपोर्ट, शॉप्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, the garbage collectors. Now they are basically out of the ambit of the taxation system of the Indian government, right? तो इन्हीं को कहा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर. और फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे लोग एक फॉर्मल एग्रीमेंट में नौकरी करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ है, दिस इज बेसिकली नॉट अ न्यूज़ बट दिस इज एन आर्टिकल which has been published on the Financial Express. So the article has been titled as the cover for the informal sector. So this basically talks about the informal sector in India and the related issues that the informal sector in India is facing. So this can be important for our prelims and for the mains. It can be important from GS paper to Indian economy, especially from the inclusive growth point of view. That's been taken from the Financial Express. So we'll first try to learn about the background of the informal sector, about some of the important points which are related to the informal sector. तो देखिए कहा गया है about the predominance of the informal sector has become one of the central features of the labor market scenario in India. तो हम जब labor market का बात करेंगे, जो employees है, जो workers है, they mostly belong to the informal sector of the economy only. Well, informal sector contributes around half of the GDP of the country. तो जो GDP है, जो numbers होते हैं GDP में, तो उसमें आधा जो value होता है ना, वो that has been contributed by the, you can say, by the informal sector only. But if you look at the population of the working population, then you should know that 90% जो है of the total workforce, they are actually engaged or involved in the informal sector only. ठीक है, तो पैसा आप कह सकते हो कि यहाँ पे there is a kind of mismatch because इतना ज़्यादा यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, but the money in this case or this आप कह सकते हो just share of economy is less. So this is the reason why जो लोग आप देखोगे informal sector में काम करते हैं ना, they basically earn less as compared to their formal counterpart. ठीक है. The government also has made several efforts to formalize the economy. तो अगर मान लीजिए जो informal sector of the Indian economy है, अगर इसे formalize कर दिया जाएगा तो basically इससे government का यहाँ पे एक benefit हो जाएगा कि जो taxation है, तो tax यहाँ पे government का जो collection है ये बढ़ जाएगा, ठीक है, because they would be taken under the ambit of the taxation system. और इसके ऊपर भी आप बता सकते हो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको भी सारे जो government schemes है तो उनका भी जो benefit है, the benefit can be availed by those people also, because normally क्या देखा जाता है, the people who are engaged in the informal sector, they do not have knowledge or they do not have access to the government schemes. ठीक है, तो इस तरीके से they would be also brought under the various schemes of the government. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे efforts लाया है, for example the introduction of the GST, then the digital payment system, the enrollment of informal sector workers on numerous government portals like e-Shram. तो e-Shram जो पोर्टल है इसके बारे में आगे भी बात करेंगे. This is basically used for enrollment, registration, collection and identification of the required data of all the unorganized workers, ताकि अगर किसी का नीड हो तो यहाँ से उनको रिक्रूट किया जा सके. ठीक है, so this is the reason why the government is trying to formalize the Indian economy through such initiatives. Despite this, आप देखोगे the formal sector जो है it is more productive in nature than the informal sector. And यहाँ पे भी देखिए formal sector में जो productivity इसीलिए ज़्यादा है because यहाँ पे skills आप देखोगे ज़्यादा रहता है, ठीक है. And also the formal workers have access to social security benefits. तो जो social यहाँ पे आप कह सकते हो जो benefits होगा that the formal workers are eligible for, और जैसे कि मान लीजिए जब pensions मिल जाता है, life insurance scheme मिल जाता है, health insurance पाया जाता है, then उनको दिया जाता है जो PDS रहता है, that is the ration का जो membership है वो दिया जाता है in case they are below the poverty line, and then they would also avail loans. ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं about आवास योजना के बारे में, उनको घर वगैरह बना के हेल्प किया जाता है. ठीक है, so these are the benefits in the formal sector. तो इसीलिए ताकि जो informal sector में काम करे ताकि उनको भी ये सारा बेनिफिट्स दिया सके, पेंशन जैसे कि मान लीजिए कि इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया. दिस इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव्स टू ब्रिंग अबाउट द informal sector under the formal sector only. It is therefore necessary to consider multidimensional aspects of formalizing the Indian informal workforce, so that they can be brought under the ambit of the formal sector of the Indian economy only.
तो अगर हम बात करें अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो आप देखोगे कि फॉर्मल सेक्टर में यहाँ पे बताया जाता है दैट द फॉर्मल सेक्टर हैज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय एंड अ प्री डिफाइंड वर्क कंडीशन। तो बेसिकली इस तरीके का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो एग्रीमेंट रहता है ना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल रहता है। तो दिस इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय का यहाँ पे ये बेनिफिट रहता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय होगा ही और शी वुड बी हैविंग अ काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है देन द पर्सन द एम्प्लॉय वुड नॉट बी लाइक किक्ड ऑफ और यू कैन से फायर्ड ऑफ और लेड ऑफ फॉर एनी रैंडम रीजन। तो उनका एक यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बना रहता है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं पाया जाता है। दिस सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन द सेम एनवायरनमेंट एंड इज लीगली एंड सोशली अवेयर ऑफ देयर राइट्स। तो इस केस में क्या होता है, उनका जो वर्किंग कंडीशंस है वो काफी अलग रहता है, वो काफी सही रहता है। प्लस आप कह सकते हो दे आर ऑल्सो क्वाइट अवेयर ऑफ ऑल दी राइट्स एंड बेनिफिट, जैसे कि लीव हो गया, सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, तो ये सब के बारे में दे हैव ऑलरेडी गॉट द नॉलेज ऑफ इट। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेस व्हिच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड एंगेज्ड इन द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑपरेटेड ऑन अ प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप बेसिस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर के बिजनेस के बारे में। एज यू कैन सी देयर आर सम स्ट्रीट वेंडर्स हियर, देन यू वुड फाइंड सम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वुड बी देयर, एंड आप देखोगे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो टेलरिंग कर रहे हैं। सो दे बेसिकली यहाँ पे देखोगे आप जो रोड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, तो दिस आर बेसिकली द पीपल हु आर एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट द सिनेरियो ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल, एज आई टोल्ड यू, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा ऑफ ऑल द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक डेटा है जहां पे मेंटेन किया जाता है ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटास बताया गया है कि सोशल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में ओवर 94% ऑफ द 27.69 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। तो देखिए ये जो पोर्टल है ई-श्रम पोर्टल, तो यहाँ पे ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 27 करोड़ पीपल आर यहाँ पे रजिस्टर्ड हु आर बेसिकली बिलोंगिंग टू द इनफॉर्मल सेक्टर। इनमें से जो 94% है ना, दे आर करेंटली वर्किंग इन अ मंथली इनकम ऑफ लेस देन 10,000। तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे इस इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा बहुत कम रहता है। ओवर 74% ऑफ द एनरोल वर्कफोर्स दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट, लाइक द शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करते हैं। उसके बाद दे बिलोंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड आल्सो द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो दिस 74% जो है वो ये क्लासेस को बिलोंग करते हैं। देन अगर हम बात करेंगे अबाउट एज वाइज एनालिसिस के बारे में, देन 61.72% ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर्स अगर हम देखेंगे, सो ऑफ द पोर्टल आर ऑफ द एज फ्रॉम 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स। तो ये जो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली रजिस्टर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल, दे बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 40 ईयर्स ओनली। ठीक है, और 22.12% आर ऑफ द एज 40 ईयर्स टू 50 ईयर्स। तो अगर हम देखेंगे आउट ऑफ ऑल दी informal or out of the population who is basically engaged in the unorganized sector, तो यहाँ पे देखिए they mostly belong to the working age population only, that is 18 to 40 years. And अगर हम देखेंगे about the gender wise analysis के बारे में, 52.81% of the registered workers are female. ठीक है, तो female का जो condition है it is even worse with respect to the informal sector, and 47.19% are the male. Occupation wise अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो are engaged in the आप कह सकते हो who are engaged in the informal sector are in the agriculture only. Agriculture में जैसे कि मैंने बताया था about the landless farmers के बारे में, about the marginal farmers के बारे में. So agriculture is at the top with 52.11% of the enrollment done by those related to the farm sector, followed by domestic and household workers. तो जो domestic जो काम करते हैं household workers जो है now they are at a percentage of 9.93%, and finally the construction workers who are basically meant for various works in the construction of road, building, bridges. तो यहाँ पे percentage दिया गया है of 9.13%. So this is basically the state or scenario of the informal sectors according to the e-श्रम portal. अब देखिए what are basically the challenges क्या है और क्यों government is trying to like bring them under the ambit of the formal sector, because they are basically facing some kind of challenges. तो challenges देखिए क्या क्या है. So gender disparity है, तो gender disparity इसीलिए है because आपने देखा कि जो biasness है, आपने देखा कि जो female का जो population है informal sector में वो ज़्यादा है, ठीक है. So women constitute the majority of informal participants but they receive the least benefit and are characterized by, आप देखोगे जब भी यहाँ पे कोई female worker या मान लीजिए male worker whenever they are working
working or whenever they're working the same work or in the same profile, and whenever they're working for the same hours, you would find the woman is often paid less than the male counterpart. Okay, so they are basically paid less, then they have got an income volatility and the lack of a robust social safety net. ठीक है, उनका जो सिक्योरिटी है वो भी कम रहता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, देन वी कैन स्पीक अबाउट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बाय डेफिनेशन हैज नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जैसे कि फॉर्मल में एक एग्रीमेंट रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय, तो इस केस में ये मिसिंग रहता है. सो पेड लीव यहाँ पे नहीं रहता है, हेंस पे नो मिनिमम वेज नॉर पे अटेंशन टू द कंडीशंस ऑफ वर्क. तो उनका एक मिनिमम वेज नहीं रहता है कभी भी. जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयर अगर चाहेगा तो दे कैन डेफिनेटली पे लेस देन दे डिजर्व टू बी पेड. राइट, एंड देन यहाँ पे बताया क्या बोलते लैक ऑफ टैक्सेशन. तो लैक ऑफ टैक्सेशन इज बेसिकली डेट्रीमेंटल और इट कैन बी हार्मफुल फॉर द गवर्नमेंट. क्यों? एज द बिजनेसेस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी आर नॉट डायरेक्टली regulated, they usually avoid one or more taxes. तो कभी वो जीएसटी पे नहीं करेंगे. आप देखोगे कभी कि वो जो भी सारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स वो पे नहीं करते. ठीक है, सो दिस बेसिकली poses a challenge for the government as a major chunk of the economy remains out of the tax net. You know 90% of the people they are working in the unorganized sector only. तो अगर वो टैक्स ही पे नहीं करेंगे, then where do you think the government will earn the revenue from? And it is worst at the time of disaster. Disaster in the case आप कोई फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, पैंडेमिक हो गया. देखिए पैंडेमिक जो कोविड का टाइम में आपने शायद देखा होगा जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था फ्रॉम द सिटीज टू द विलेजेस. ठीक है, माइग्रेशन होता है फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, लेकिन जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था कोविड के टाइम में, तो दिस वाज मोस्टली बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ओनली, क्योंकि दे आर द पीपल हु नॉर्मली लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया था, बिकॉज दे वर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर रेगुलर लाइवलीहुड, सो दे हैड टू कम बैक टू देयर ओन बस्तीज. राइट, so this is what basically refers to the point that they are normally they face a greater threat or they are worse threat at the time of the disaster. This problem is exacerbated by the lack of social security. Okay, and आप देखोगे there are no fixed working hours also. So long working hours beyond the labor standards are common in India in the unorganized sector. और ये इसीलिए possible है because in particular there is no fixed working time in the agriculture sector because there are no laws which can act a guideline for the farm workers working condition. लेकिन अगर आप देखोगे फॉर्मल सेक्टर में यहाँ पे कंप्लीट आपका वर्क कंडीशंस रहता है. जैसे कि मान लीजिए कि हफ्ते में एक दिन या 2 दिन बंद रहता है, तो ये सारा चीज इन द इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं रहता है. ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लाए व्हिच एक्चुअली यू शुड नो अबाउट. ठीक है, फॉर एग्जांपल द ई श्रम पोर्टल के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा. देन अबाउट द लेबर कोड्स, द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में, द पीएम स्वनिधि के बारे में जहाँ पे स्मॉल लोन्स दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि कोविड के टाइम में लाया गया था. देन द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जहाँ पे किसान को पैसा दिया जाता है. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आर बेसिकली एम्ड एट और इट इज बेसिकली मेंट फॉर बेनिफिटिंग ऑफ द पीपल एंगेज in the informal sector. The next article is based on a report on the SVAMITVA scheme. तो SVAMITVA का full form you should know it is Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. तो normally यहाँ पे क्या होता है, आपने शायद कभी देखा भी होगा बस्ती वगैरह में ड्रोन्स यूज किया जाता है. ठीक है, सो ये ड्रोन्स यूज करके वो क्या करते हैं, जो लैंड होता है ना उसे सर्वे करते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इट कम्स अंडर SVAMITVA scheme. इसी के बारे में हम बात करेंगे, ये क्या रिपोर्ट है. एंड दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स जो भी फाइंडिंग्स है. इट कैन बी यूज्ड इन द मेंस जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉइंट of view that has been taken from the Press Information Bureau. So यहाँ पे बताया गया about the report of the expert committee on the SVAMITVA scheme जो है was released during the National Conference on SVAMITVA scheme and rural planning. अभी जो national conference है, this is being held in Madhya Pradesh. Now this report it provides the guiding principles that states may adopt in order to realize the objectives of the SVAMITVA scheme holistically. तो यहाँ पे कुछ guiding principles के बारे में बताया गया है जो states must adopt so that in order to realize the objectives of this particular scheme. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि recently एक साल यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था on 24th of April. तो ये जो SVAMITVA scheme है, it is a central sector scheme of the Ministry of पंचायती राज. So central sector scheme क्या होता है, वही scheme होता है which is 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है. सो दिस वाज बेसिकली नेशन वाइड इसे लॉन्च किया गया था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24th of April 2021. ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया था ऑन द नेशनल, या इसे पंचायती राज डे भी कहा जाता है. तो यू शुड नो द पंचायती राज डे जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड सेलिब्रेटेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन 24th of April. हर साल इसे किया जाता है टू कमेमोरेट द 73rd अमेंडमेंट एक्ट. तो मैंने कल डिस्कस किया था अबाउट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में which basically gave the Panchayati Raj a constitutional status.
सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द एक्सपर्ट कमेटी ऑन द SVAMITVA स्कीम के बारे में, तो एक्सपर्ट कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द सेम ईयर 2022 ओनली, व्हिच कंसिस्ट ऑफ डोमेन एक्सपर्ट। तो ये जो एक्सपर्ट्स है दे आर फ्रॉम द लैंड गवर्नेंस, देन बैंकिंग के बारे में, द सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, देन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंटर सिस्टम, देन स्टेट रेवेन्यू एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एंड प्रीमियर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट। तो दिस पर्टिकुलर डोमेन से या एरिया से एक्सपर्ट लिए गए हैं इन दिस पर्टिकुलर कमेटी, एक्सपर्ट्स कमेटी कहा गया है। तो यही कमेटी का जो रिपोर्ट है, तो इसमें देखिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो रिकमेंडेशंस यहाँ पे बताया गया टू क्रिएट सिस्टम्स दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आई ऑलवेज टेल यू कि ये पब्लिक सर्विस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है, विच शुड बी ऑलवेज डिप्लॉयड इन द केस ऑफ द पब्लिक सर्विस में। सो इसके बाद बताया गया अबाउट द प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फॉर अवेलिंग बैंक लोन। ठीक है, उसके बाद डेवलप लिंकेजेस बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो नॉर्मली क्या होता है, जो डिपार्टमेंट्स होता है मिनिस्ट्रीज के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सो दे नॉर्मली दे नॉट वर्क इन कोलैबोरेशन। तो इसीलिए कभी कभी काम क्या हो जाता है, देयर आर लैगिंग। ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो काम है वो एक स्लो पेस पे जाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई यहाँ पे लिंकेज करने के लिए कहा गया है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देन वाइडर एडॉप्शन ऑफ द SVAMITVA डेटा सेट्स बाय गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एजेंसीज एज पर द न्यू जियोस्पैटियल गाइडलाइंस, increasing capacity at the state, district and block level for the GIS skill set among others. तो अगर हम बात करेंगे अबाउट द SVAMITVA स्कीम के बारे में, एज आई टोल्ड यू, इट स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यहाँ पे 100% फंडिंग जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगा, व्हिच वाज लॉन्च्ड नेशनली ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2021। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, इसे याद रख लीजिएगा, बिकॉज इट इज द सेम डेट एज द नेशनल पंचायती राज डे एज वेल। एंड इस डे में ही आप कह सकते हो इट इज द बर्थडे ऑफ सचिन तेंदुलकर एज वेल। एंड अगर हम बात करेंगे अबाउट द नोडल मिनिस्ट्री, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, and survey of India जो है, it is a technology implementation agency. ठीक है, ministry is also important. Now what is the aim of this particular scheme? To provide an integrated property validation solution for rural India. ठीक है, तो ये जो scheme है, it is normally focusing about the survey of land in rural areas, so that जो conflicts कम हो जाए, and it basically leads to a integrated property validation solution to provide the record of rights to village household owners in rural areas and issue property cards. तो जिनका property है, जिनका land है, उनको दिया जाएगा property cards. The demarcation of rural areas would be done using drone surveying technology. ठीक है, तो नॉर्मली आप देखोगे कभी कभी जो बस्ती है वहां पे लोग आते हैं, देन ड्रोन वगैरह यूज करके वो सर्वे करते हैं। ठीक है, सो दिस बेसिकली अंडर द SVAMITVA scheme only. The demarcation of the rural inhabited areas could be done using the CORS. तो ये जो CORS है, stands for continuously operating reference station network, which provides mapping accuracy of 5 centimeter. This technology is important. This would provide the record of rights to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in the villages. तो इसी को आप कह सकते हो कि राइट को देने के लिए they would be also given some kind of card. It will cover around 6.62 lakh villages of the entire country during 2021 to 2025. तो बेसिकली 4 साल का एक प्रोग्राम लिया गया था जहाँ पे all the villages, या you can say around 6.62 lakh villages will be surveyed and जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह ये सेट किया जाएगा। सो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन। The next article is about Arunachal Pradesh, जहाँ पे कहा गया है कि APFA, that is Arunachal Pradesh Football Association, has signed an MOU with a sport from. इसके बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में है, क्या है इसमें। It can be important for prelims, नाम डायरेक्टली पूछ देगा, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। It has been taken from the Arunachal Times. तो देखिए Arunachal Pradesh Football Association जो है, जिसे APFA कहा जाता है, इसने क्या किया, it has signed a memorandum of understanding with a फरीदाबाद कंपनी के साथ, जिसका नाम है ग्रेबिन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, GSPL। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। इन न्यू दिल्ली में ये साइन किया गया है, मेकिंग द फॉर्म द इक्विपमेंट पार्टनर। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन है फुटबॉल एसोसिएशन का, तो जो भी इनका मैच होता है या जो भी उनका जो टीम रहेगा, तो उनको स्पॉन्सर करेगा, या मान लीजिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, सो फॉर द अपकमिंग सीजन्स में ऑन बिहाफ ऑफ द APFA, इट्स ऑनरेरी सेक्रेटरी कीपा अजय, यू शुड नो, आई हैव कवर्ड अबाउट हिम, इज द रीसेंट ट्रेजरर ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF. He is basically holding a very position of high standard
standard. So he has signed the MOU with the GSPL director as Sabera representing GSPL. So ये नाम इतने important नहीं है, but the company is important, that is GSPL. The MOU will be effective for the 2 years. So 2 साल के लिए जो भी जितना भी सारा matches होगा the national level, तो सारा जो equipment होगा that will be provided by the GSPL, that is Gramin Sports Private Limited only. The APFA has become the first sports association from the state to sign an MOU with a sport brand. तो पहला बार इस तरीके का एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक डील साइन किया गया है, एक MOU साइन किया गया है. The company will sponsor equipment for both the men and women team, which is a very great news, from junior to senior level in national level events. इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन अरुणाचल प्रदेश, जहां पे कहा गया है इंदिरा मालो ताना, आई एम वेरी श्योर यू हैव हर्ड अबाउट हर नेम, टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द UNHRC's UPR. तो UNHRC स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. तो इन्हीं का एक मीटिंग में शी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, नॉट फॉर मेंस, बट इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. So this, as you can see in the picture, is Arunachal's first lady IS officer, that is Indra Mallo Tana. Now she is also the joint secretary in the Union Women and Child Development Ministry में. ठीक है. Now she is representing India at the United Nation Human Rights Councils का एक यहाँ पे review हो रहा है, that is Universal Periodic Review, which is going to be held in Geneva, Switzerland. Now this is a proud moment for Arunachal Pradesh, and she is a member of the delegation from India, which comprises senior officials from the External Affairs Ministry, the Home Affairs Ministry, the WCD जो है, that is the Women and Child Development Ministry, से वो she would be representing, the Social Justice and Empowerment Ministry, the Minority Affairs Ministry, the Rural Development Ministry, and the Niti Aayog as well, which is the think tank of the government of India. Now, besides the Vice Chancellor of the National Law University. Now, these are going to be delegates who are going to represent India in Geneva and in Switzerland, basically in this UNHRC Universal Periodic Review में. तो ये मैंने आपको पूछा था इन द लास्ट वीडियो में एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे एक सैंपल आंसर दे दिया. इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड आंसर, यहाँ पे बस फैक्ट्स हैं. आपको देखिए कोई भी मेंस आंसर जो है, यू शुड ऑलवेज राइट इट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, जहाँ पे रहेगा इंट्रोडक्शन, देन बॉडी रहेगा और कंक्लूजन रहेगा. दिस इज ओनली अ सैंपल, और दिस नॉट जस्ट अ सैंपल, यू कैन से दिस इज ओनली द फैक्ट्स दैट यू विल बी एबल टू राइट इन दिस पर्टिकुलर आंसर. ठीक है. तो मेक श्योर आप जब भी आंसर लिखोगे, यू ऑलवेज राइट दिस इन द स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. तो ये था प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था. लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स आर, तो पहला था अबाउट द सेस्मोग्राफ में जो फर्स्ट सेस्मिक वेव है, इट इज द बॉडी वेव. और बॉडी वेव में कौन सा बॉडी वेव? इट इज P वेव, व्हिच इज अ प्राइमरी वेव. सो इन व्हिच ईयर डिड द बैटल ऑफ वालोंग टेक प्लेस? इट टुक प्लेस इन द ईयर 1962. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.